Hi everyone. I hope till now you all must have learnt part 1 and part 2 of top 50 NTSE preparation series. Now we are going to start another 50 questions today with periodic table and metals and non-metals. So let's get into the video. Here we go. The number one question is, in electrolytic refining of metals, the pure metal is obtained at एनोड और कैथोड. यस, ऑब्वियसली इन कैथोड. और जो एनोड में मिलता है वो दैट इज नोन एज एनोड मड. द सेकेंड वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. द insoluble impurities in the solution after the electrolytic refining of metal is called anode mud. Next one question. Iron is mixed with a non-metal which makes the soft iron hard. Name the non-metal. कौन सा नॉन मेटल है जो आयरन के साथ मिलाया जाए तो वो सॉफ्ट आयरन को भी हार्ड बना देता है? दैट इज कार्बन. फोर्थ वन क्वेश्चन. द एलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड एमलगम. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. द ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ डैश एंड डैश. ब्रॉन्ज is an alloy of copper and tin. कॉपर और टीन जो ब्रॉन्ज जो इसका एलॉय होता है वो किसके लिए जाना जाता है? ये अपने कोरोजन रेजिस्टेंस की वजह से जाना जाता है. कॉपर टीन ब्रॉन्जेस आर नोन फॉर देयर कोरोजन रेजिस्टेंस. ब्रॉन्जेस स्ट्रॉन्गर एंड मोर डक्टाइल देन ब्रास. सो वी आर continuing with brass. Brass is an alloy of copper and zinc. And it has enduring importance because of its hardness and workability. The next one is solder. Solder is an alloy of tin and lead. But here are two type of solders. Solder melts at lower temperature, right? But if it is alloy of tin and lead, it is soft solder. And hard solder is alloy of copper and zinc. The next one question. How many elements are there in the periodic table? There are 118 elements are there in periodic table. Next one question. Two vertical columns of modern periodic table are called, that are groups. Vertical columns are known as groups. How many elements are there in lengthenoid series? आपकी बुक में 14 एलिमेंट्स गिवन है, लेकिन अभी तक लेंथेनॉइड सीरीज में 15 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? यस, डिमित्री मेंडलीव. मेंडलीव जो है उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी जाना जाता है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, इन विच ग्रुप नोबल एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 18. देयर आर in 18 group noble elements are there. Why noble elements are there? Ideal or noble elements like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon have filled valence shell, so they are assumed as non-reactive and it is kept in 18th group. Question number 13. Who designed the modern periodic table? हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया था. Question number 14. Which is the most electronegative element? फ्लोरीन is the most electronegative element. ये हेलो ग्रुप के मेंबर में है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जिसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. इन विच ग्रुप हैलोजेंस लोकेटेड? ये हेलो ग्रुप के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? 17th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं इन पीरियोडिक टेबल. क्वेश्चन नंबर 17. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एल शेल. लास्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट फुलफिल होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स से. सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट किए जाते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एज वी गो डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल के कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इन पीरियोडिक टेबल. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ग्रुप्स, वर्टिकल लाइन्स, periods, horizontal lines. There are 18 groups and 7 periods are present in modern periodic table. The next one is question number 21. According to Henry Moseley, elements are the periodic function of their
Atomic number or atomic masses? Obviously atomic number, and atomic number is represented as Z, capital Z. Next one is those elements with same masses and different atomic numbers are called isobars. What? Isobars. And those elements that have different atomic masses but same atomic numbers are called isotopes. जैसे हाइड्रोजन का आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन के कौन से होते हैं? प्रोशियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइशियम, राइट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. इका एल्यूमिनियम वॉज फर्दर नेम्ड एज गैलियम. इसमें आपको तीन एलिमेंट्स मिलेंगे दैट आर गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम. इका एल्यूमिनियम वॉज फर्दर नेम्ड एज गैलियम, जिसे मेंडलीव ने दिया था. और ये जो इका वर्ड है, जो प्रीफिक्स यूज हुआ है, ये एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ वन या पहला, फर्स्ट या एक होता है. The transition element are accommodate in which group, between which group? They are 3 to 12, right. थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया है. क्वेश्चन नंबर 27. 1 picometer is equal to how many meters? 1 picometer equal to 10⁻⁻12 meter. पिकोमीटर क्या है? पिकोमीटर इज अ यूनिट टू मेजर एटॉमिक रेडियस. Question number 28. According to Bohr-Bury scheme, which formula is used to calculate number of electrons in different shell? That is 2n square formula. Bohr-Bury ने KLMN शेल के लिए इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में फिल करने के लिए KLMN के लिए फॉर्मूला दिया था, दैट इज 2n स्क्वायर. n is a number of shell. n is equals to 1 रखेंगे आप, पुट करेंगे, you will get 2 electrons, then 8, then 18 and then 32. As we go left to right in the modern periodic table, the atomic radii decreases. जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है. नेक्स्ट वन इज इका बोरोन. इका बोरोन इज कॉल्ड एज स्कैंडियम and Ica silicon is known as Germanium. How many elements were discovered when Mendeleev started his work? Mendeleev ने अपना वर्क स्टार्ट किया था 63 एलिमेंट्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 32. How many vertical groups are there in Mendeleev's periodic table? Mendeleev ने अपने periodic table में 8 ग्रुप्स को एंटर किया था. एंड Mendeleev ने अपने periodic table में 6 पीरियड्स को एंटर किया था. Question number 34. According to the Mendeleev's periodic table, elements are the periodic function of atomic masses. Modern periodic table is based on atomic number, whereas Mendeleev's का जो periodic table था वो atomic mass पर based था. Question number 35. The Newland's law of octave worked only in lighter element. Lighter element in the sense जो जिसके atomic masses कम थे. न्यूलैंड का जो लॉ था इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास 40 था. इसके बाद के सारे एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड का लॉ प्रूफ नहीं कर पाया. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. हाउ मेनी ट्राइड्स डिड डॉब्रेनियर डिस्कवर? ट्राइड यानी हर एक में 3 एलिमेंट को उसने प्लेस किया. डॉब्रेनियर की जो डिस्कवरी थी जिसमें उसने सबसे पहले रखा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एक ट्राइड. Second one calcium, strontium and barium, and third one chlorine, bromine and iodine. Question number 37. According to Newland, how many elements are there in the earth? जब न्यूलैंड आए थे उस समय अर्थ में 56 एलिमेंट्स थे. ये न्यूलैंड ने डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 38. When Newland came, how many elements were there? 56. Next one question. When Newland came, which was the 56th element? Yes, इट इज़ नन अदर देन थोरियम. थोरियम लास्ट एलिमेंट था जो न्यूलैंड ने 56 नंबर का एलिमेंट उन्होंने बताया. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 40. अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल? अभी बताया मैंने कैल्शियम. कैल्शियम तक ऑक्टेव लॉ जो था वो एप्लीकेबल था. आफ्टर दैट जितने भी हैवियर एलिमेंट्स थे उसके लिए ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस ऑक्टेव लॉ में नहीं था. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 41. अराउंड द ईयर 1800 हाउ मैनी एलिमेंट्स वर देयर? कितने एलिमेंट्स थे? देयर आर 30 एलिमेंट्स थे. मतलब जब स्टार्टिंग हुई 1800 ईयर में उस समय पर ओनली हमारे पास में 30 एलिमेंट्स थे.
Question number 42. Esters are sweet smelling substance. Now what is ester? Esters are formed when acid reacts with alcohol. So they smells sweet. Question number 43. Dash the most efficient converter of sunlight into chemical energy. Sugarcane. Sugarcane is the most efficient converter of sunlight into chemical energy. Question number 44. The melting point of ethanoic acid is 290 Kelvin. You know what is ethanoic acid? Ethanoic acid is also known as acetic acid, and that formula is CH3COOH. Esters are formed from the reaction of acid and alcohol, जो मैंने अभी आपको बताया. Question number 46. What is formed when sodium reacts with ethanol? सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. दैट इज ऑफ Na reacts with C2H5OH, ethanol का formula, and then sodium ethoxide is formed, that is of C2H5ONa plus H2, hydrogen gas liberate होती है. Next one question is, which acid is regarded as a dehydrating agent as it removes water from ethanol? इथेनॉल में से पानी रिमूव करते हैं. कौन सा एसिड है जिसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. ट्राइड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे डॉब्रेनियर्स के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये डॉब्रेनियर का ट्राइड प्रिंसिपल माना जाता है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 49. एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ये एक ऐसी रिएक्शन है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करती है. हाइड्रोजिनेशन एज इट्स नेम सजेस्ट, व्हाट? हाइड्रोजन का जुड़ना. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन in the presence of catalyst. What kind of catalyst? Like palladium, nickel, है ना, to give saturated hydrocarbon. This is the reaction in which hydrogenation takes place. Question number 50 or last one. The name the catalyst used in addition reaction or hydrogenation reaction, that is palladium and nickel. So I hope this will be very helpful for you, all of you. If you like this video, please share. जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, आपके नियर डियर वंस, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, उन्हें आप प्लीज़ इससे शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने NTSE प्रिपरेशन को ईजी